Hello to all the student of MCOM second year. I am Professor Digva Sonia from SSGM College. In today lecture, I have to teach you your subject of A group advanced auditing third chapter. So as we have completed our two chapter, the last two chapter, the name will be Introduction and Standard on Auditing, and second chapter will be Computer Audit under Computerized Information System. So in today session or lecture, we have started our third chapter of Advanced Auditing. So the name of third chapter will be Audit Committee and Corporate Governance. So in this lecture we continue this chapter and we have started this chapter. Okay. So first we have to discuss about the introduction of this chapter will be Audit Committee and Corporate Governance. So first we have to discuss the introduction about corporate governance. What is meant by corporate governance and why corporate governance is required for the company and for the management. Okay, so first I will read that concept of introduction and then I will give you explanation of that. Okay, first I will read. Corporate governance is the system by which companies are directed and governed by the management in the best interest of the stakeholders and other, ensuring better management, greater transparency, and timely financial reporting. The board of director is responsible for governance of their companies. Okay, so first of all, what is meant by corporate? The meaning of corporate will be company. If you call other name of corporate means company or entity. कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी आणि एंटिटी. कॉर्पोरेटला दोन नाव म्हणत आहे, कंपनी आणि एंटिटी. अँड गव्हर्नन्स मीन्स द गव्हर्नमेंट इज रिलेटेड टू द अवर government regulatory. So corporate governance is the nothing but a system by which companies follow. Okay, so corporate governance is what it is a proper system by which company has to follow. Okay, the rules, regulations, all the kinds of rules, regulation, procedure have mentioned in corporate governance. ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक सिस्टम है जिसे बहुत सारी की सारी कंपनियां फॉलो अप करती हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस, राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, सो ये सारी चीज़ें मेंशन रहती. इसीलिए इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या कहा गया है? एक सिस्टम जो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, वेदर दे हैव टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे हैव टू मैनेज मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, टाइमिंग and their financial reporting statements, financial transaction. The board of directors is responsible for governance of their companies. Okay, जो board of directors हैं वो responsible रहेंगे अपनी companies के सारे rules and regulations. तो board of director have to also follow all kinds of rules and regulation. So corporate governance is nothing but an system which are directed and controlled by the मैनेजमेंट. तो वो यानी कि डायरेक्टली कंपनी, सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है. तो डायरेक्टली इसके थ्रू क्या रहेगा? कंपनी जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो सारा कंपनी का वर्किंग मैनेज करती हैं, लाइक देयर बेस्ट इंटरेक्ट टू द शेयर होल्डर, इंश्योरिंग मैनेजमेंट एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स. तो ये मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके उनका पूरा बेटर मैनेजमेंट करती है. ओके, तो इसके लिए एक सिस्टम उन्हें फॉलो अप करना पड़ता है. तो वो सिस्टम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत वो सिस्टम कंपल्सरी हर कंपनी को ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. और इसके यूज़ से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? उनकी मैनेजमेंट इफिशिएंसी कम विल बी मोर असीसेबल एंड दे हैव बेस्ट इंट्रैक्ट. तो वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर से कनेक्टेड रह पाते हैं
और काम में भी मैनेजमेंट का काम जो रहता है सारी अथॉरिटीज़ का है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव ऑल्सो इंक्रीज by day-to-day activity. So the corporate governance system will provide more flexibility, and they have to maintain the time duration in our financial statement also. So corporate governance is nothing but a very executive system and very well settled system which have followed by the companies, and company will be more flexible to use this system because they have used their timing, and in this system all the kinds of rules and regulation are directly published. So whether any kinds of problem queries find by the management authorities, they have followed that system properly and know what kinds of issues and what kinds of information we have to access on what situation. Okay, the board of director is responsible for governance of their company. Okay, जो भी कंपनी के रूल्स रहेंगे, कोई भी एक कंपनी पर्टिकुलर, अलग अलग कंपनीज है. ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर्टिकुलर कंपनीज के अलग अलग रहेंगे. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस देयर कंपनीज. ओके, तो उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम फॉलो अप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे जो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सिस्टम है ये प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है और इस सिस्टम से क्या क्या हमें फ़ायदे हो रहे हैं, टाइमली हमारा रिपोर्ट हो रहा है और इस मोर ट्रांसफरेबल है, ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम में, और ये मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी बेटर है और स्टेक होल्डर को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वेदर दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर system because there have huge system. So corporate governance system is a proper authoritative system which have provide all kinds of rules and regulation obligation which companies are directly and control. Okay, so in introduction I have tell you about what kinds of aspect of corporate governance. Okay, so move to next slide. In next slide I have tell you the meaning of corporate governance. So what kind of meaning? First I will read. Corporate governance refers to the system of structures, rights, duties and obligation by which corporation are directed and controlled. ओके, जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली ही बोला था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंतर्गत सारे के सारे प्रोसीजर आते हैं कंपनी को जो फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि प्रोसीजर में क्या क्या रहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत, क्या क्या रहेंगे सिस्टम के अंतर्गत, सारा कंपनी का स्ट्रक्चर, कौन से ओनर की क्या राइट है, प्रेफरेंशियल इक्विटी, जो ओनर्स हैं इनकी राइट्स क्या हैं प्रॉपरली, और ड्यूटीज़ क्या हैं, और क्या क्या ऑब्लिगेशन, वेदर दे हैव फाइंडिंग एनी काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन बाय विच कंपनीज और कॉरपोरेशन हैव टू फॉलो डायरेक्टली. ओके, सो इस सिस्टम के थ्रू कंपनी डायरेक्टली अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है अपने इस सिस्टम के टूवर्ड्स अपनी कंपनी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है. ओके, सो इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर्स, कंपनी का राइट्स, ड्यूटी, सबकी कंपनी के अंतर्गत जो मेंबर्स क्या काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैनेजर, शेयर होल्डर्स, दे हैव व्हाट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस. So what kinds of responsibility and flexibility, so they have to assign all kinds of aspect of companies. Okay, so I have tell you about that meaning of corporate governance in second, because second paragraph, corporate governance is the set of process, custom, policies, laws and institutes affecting the way of corporation company is directed, administrated or control. ओके, सो इट इज़ ए प्रॉपर सिस्टम. इस सिस्टम के अंतर्गत आपको दूसरे कोई सिस्टम को फॉलो अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सिस्टम ना कि आपको कंपनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी की पूरी पोजीशंस को एनालाइज करता है एंड देन ये क्या एक टारगेट सेटअप करता है. दे हैव प्रोवाइडेड अ कंपनीज
प्रोसेस, कस्टम्स, पॉलिसीज़ और लॉस प्रोवाइड करता है कंपनी को, जिसके लॉ कौन कौन से फॉलो करने हैं, किसके अंडर सेक्शन कंपनी को। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत सारे के सारा प्रोसीजर लिखा रहता है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी को फॉलो अप करने के लिए ये सारे सिस्टम की पूरी प्रोसेस दी गई रहती है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी को कौन से रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग पे कंपनी को कौन सा रेगुलेटरी सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है, अंडर विच स्पेशलाइज रेजोल्यूशन और अ जनरल रेजोल्यूशन, और कंपनीज़ के कस्टम्स क्या रहेंगे, पॉलिसीज़ कौन कौन सी कंपनीज फॉलो करेगी, अंडर विच सेक्शन की कंपनी, मिनी स्टेटेड कंपनी यानी कि जो मैक्सी यानी कि मिनिमम स्केल बेस्ड कंपनी, माइक्रो कंपनी है, तो उनके किस तरीके से प्रोसेस रहेगी, कंपनी का क्या रहेगा। तो हर एक कंपनी के सिचुएशन वाइज, कंपनी के वो वाइज में यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉपर सिस्टम दिया गया है। तो इसके और सबकी जो भी जिम्मेदारी है, राइट्स है, ड्यूटीज़ है, स्ट्रक्चर है, लॉज है, तो ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं, कंपनी को इफ़ेक्ट, और यही सारी चीज़ों के अंतर्गत ही कंपनी की प्रोसेस चलती है। और कंपनी के इन्हीं लॉज और पॉलिसीज़ के अंतर्गत पूरी कंपनी डायरेक्टली हमेशा के लिए अपनी प्रोसेस करती है और रजिस्टर इनके अंडर है। तो ये सिस्टम एक क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ प्रोसीजर जिससे कंपनी फॉलो कर रही है। इस सिस्टम को फॉलो करने से कंपनी को दे हैव इफेक्टिंग द कंपनी वे ऑफ कॉर्पोरेशन, कि वो किस तरीके से कंपनी को चलाएंगे। इस सिस्टम से कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है कि हाँ, हमें अपनी कंपनी को किस तरीके से चलाना है, कि कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना परसेंटेज किस डायरेक्टर को जाए, वो शेयर होल्डर को जाएगा, प्रेफरेंस, इक्विटी, और कौन से यानी कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये कितना परसेंटेज आएगा। तो इसके सिस्टम के अंतर्गत सबके प्रॉपर नोट डाउन है इन्फॉर्मेशन। तो इस सिस्टम को कंपनी फॉलो डायरेक्टली कर सकती है। तो इससे डायरेक्टली करने से कंपनी अपने इस सिस्टम को प्रॉपरली कंट्रोल करेगी और इस सिस्टम से कंपनी को कभी भी लॉस इंकर्ड नहीं होगा। और बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा है। तो इसीलिए इस सिस्टम को कॉरपोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। इट इज़ ए मल्टी फेसेटेड सब्जेक्ट। ये मल्टी फेसेटेड है बिकॉज ये कॉरपोरेट मतलब कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी और गवर्नेंस म्हणजे गवर्नमेंट रेगुलेटरी। सो मल्टीफेसेस सब्जेक्ट कैसे है ये? कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और एंटिटी, और गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कॉर्पोरेट को क्या फॉलो करना है? गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये क्या है, दोनों को ये नाम को मिक्स करके एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यूटीज़ और जो भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन दिया है, तो इसी के अंडर एक कोई भी गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स, रेगुलेशन और अंडरटेकिंग, लॉस, कस्टम्स, पॉलिसीज़, ये तो इसी के टूवर्ड्स ये कोई भी कंपनी रजिस्टर करती है सिस्टम को, और इस सिस्टम को रजिस्टर करने के बाद वो डायरेक्टली अपनी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। सो इसीलिए इसको मल्टीफेसेटेड सब्जेक्ट कहा जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इज प्रोवाइड एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सर्टेन इंडिविजुअल। अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको यानी कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट्स है जो चार्टेड अकाउंटेंट है जो कंपनी का कर रहा है, जो कंपनी को फॉलो कर रहा है मैनेजर, तो उसको एक अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को जो अकाउंटिंग कर रहा है कोई भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनका ये सिस्टम क्या एलिमिनेट करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम एलिमिनेट करता है उनका वर्कलोड। वॉट काइंड ऑफ? और उनका वर्कलोड एलिमिनेट करता है एंड दे हैव लेस द eliminate the fraud and error also in a company. So it is a proper framework of rules, relationship, system and processes within and by the which authority is exercised and control in corporation. So ये properly system है
जो एक क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर, फ्रेमवर्क मतलब एक पूरा का सिस्टम प्रोवाइड क्या कर रहा है, ये प्रॉपर प्रोसीजर जिसके अंतर्गत सारे के सारे रूल्स, रिलेशनशिप, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिस्टम किस तरीके से चलेगा, और जो कंपनी को मैनेज कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसको डायरेक्टली एक पूरे के पूरे सिस्टम में मिल जाएंगे। एंड दे हैव टू व्यू दैट सिस्टम प्रॉपरली, और उस सिस्टम को अपनी कंपनी के अंतर्गत जो अथॉरिटी है उसको अप्लाई करेगा और इस सिस्टम को डायरेक्टली फॉलो करेगा। ओके, सो दैट सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल वेदर द कंपनी हैव टू स्टार्ट देयर business or company have to publish in a market position. Okay, so this system is grateful for the new companies and the old basis companies also. Okay, move to next slide. In next slide we have discussed the definition of corporate governance. Definition, there are many definition which have been regulated by the रिपोर्ट ऑफ सेबी कमेटी इंडिया ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने भी बहुत सारी इसके चैप्टर के अंतर्गत 4 डेफिनेशन दी गई हैं। एक डेफिनेशन जो मैंने यहाँ मेंशन करी है, बाकी 3 डेफिनेशन विल बी मेंशन इन अ टेक्स्ट बुक। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ दैट गैब्रियल डोवन, थर्ड रिपोर्ट ऑन सेबी इंडिया ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ICAI. So this is your homework that you have to write down in your notebook. Okay, so other 3 definition you have to write in your notebook. So first definition I have read you and I have teach you the concept in detail. So first definition according to the Cadbury Committee report, Cadbury Committee report ने अपनी एक सेपरेट डेफिनेशन, एक ईजिली डेफिनेशन क्लासीफाई करी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। प्रॉपरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इज़ नथिंग बट एन सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम कुछ नहीं बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इज़ नथिंग बट एक क्या है, प्रॉपर सिस्टम है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है और डायरेक्टली सिस्टम को फॉलो करके अपनी कंपनी को डायरेक्टली वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल सिस्टम वेदर वी हैव टू मैनेज, control or easily directed to any one authority members there or assign a responsibility to the particular person. अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सन को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना हो, स्टाफिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये सिस्टम के अंतर्गत सारे के सारे सब चीज़ें मेंशन करी गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सिस्टम को कंपनी अगर फॉलो करेगी तो वो डायरेक्टली कंपनी मैनेज कर सकती है अपने पूरे बिजनेस को, कंट्रोल इन अ फ्लेक्सिबल वे। Okay, so according to Cadbury Committee report, they have take a very short definition about corporate governance because they have made a easy definition for everyone to understand the concept of corporate governance. Okay, now we move forward to our next slide. In next slide we have to discuss the elements of corporate governance. What kinds of elements? There are 4 elements of कॉरपोरेट गवर्नेंस। ओके, तो इन 4 एलिमेंट्स के अंतर्गत ये कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस पूरा प्रॉपरली असाइन होता है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉरपोरेट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता है कंपनी को, एक प्रॉपर सिस्टम। ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? प्रॉपर सिस्टम है जो कंपनी को प्रोवाइड करता है टू मैनेज देयर कंपनी पोजीशन। ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम of a management of company. It has 3 key elements: transparency, accountability and merit based decision making. ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक प्रॉपर सिस्टम है जो मैनेजमेंट फॉलो करती है अपनी कंपनी को फ्लेक्सिबल और इन अ मार्केट पोजीशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, एक प्रॉपर फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सिस्टम को फॉलो करती है। ओके,
टू द मैनेजमेंट अथॉरिटी। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम कौन एक्सेप्ट करता है? द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को एक फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ की एलिमेंट। सो की एलिमेंट्स क्या? ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? द ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस में और कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है कि हाँ, अगर हमें इस बिजनेस में कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर, किसी के बीच में मतभेद नहीं होगा और फ्रॉड और एरियर्स के चांसेस बहुत लेस रहेंगे। ओके, सो omissions of errors or fraud, so ये there will be a less comparable because of transparency। तो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? मेन मैनेजमेंट को जो 3 सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर, कंपनी के लिए मोस्ट ऑफ क्या रहता है? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, टू मैनेज अकाउंटेबिलिटी एंड एनालाइजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मैनेजमेंट को, जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें किसे संभालनी पड़ती है? कंपनी की मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो ये सिस्टम क्या है? इन 3 चीज़ों पे, इन एलिमेंट्स पे वर्क करता है और इन 3 एलिमेंट्स पे वर्क करके इनको एक प्रॉपर शेप देता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत उनको ट्रांसपेरेंसी के क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की किस तरीके से कंपनी को चलना चाहिए, इन विच सिचुएशन कितना कैपिटल रेज, ये सब जो, और अकाउंटिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सिस्टम इन प्रॉपर 3 एलिमेंट्स को एनालाइज करके एक मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का वर्कलोड कम करता है। ओके, और ताकि ट्रांसपेरेंसी से, मैंने जैसे आपको अभी बोला, ट्रांसपेरेंसी से क्या रहता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी गुड। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है स्टाफिंग के बीच में, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और शेयर होल्डर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको क्या काम करना है, ऑन विच टाइम बेसिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी बोर्ड ऑफ मीटिंग, जो जर्नल मीटिंग है वो उनको अटेंड करनी है ऑन विच टाइमिंग। तो ये ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये इस सिस्टम के अंतर्गत सारे, because of all rules and regulation and procedure, so transparency will be great flexible in this because of this system। corporate governance, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है सिस्टम के अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग के, हाँ, कोई भी ट्रांजेक्शन्स में लॉस नहीं इंकर्ड हुआ हो, कोई भी ट्रांजेक्शन्स यानी कि एरियर और फ्रॉड ओमिटेड ना हो, कोई ट्रांजेक्शन की एंट्रीज प्रॉपर नहीं हो, तो अकाउंटेबिलिटी भी ये सिस्टम प्रॉपर ये पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और कितने टाइमिंग में ये अकाउंट, ये जो ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये रिपोर्ट करना है। तो ये प्रॉपर सिस्टम में टाइमिंग, ड्यूरेशन इन ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन। तो इसके वजह से अकाउंटेबिलिटी, कंपनी की जो अकाउंटिंग है, ये सब प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड होती है। ओके, प्रॉपरली रन होती है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एंड मेरिट बेट। तो अगर डिसीजन मेकिंग, अगर कोई भी यानी कि मैनेजमेंट अथॉरिटी किसी भी सिचुएशन में स्टाफिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को भी डिसीजन लेती है किसी भी कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए, या इफ कंपनी के पोजीशन डाउनफॉल हो रही है और कंपनी को इतना ये रेस करना है, क्या है, तो अगर वो कोई भी डिसीजन मेकिंग करती हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो दे विल बी मैंडेटेड। ओके, सो ये इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें फोकस करी जाती हैं। तो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट को ये तीनों सिस्टम की प्रॉपर गाइडलाइंस। तो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ दैट टू द मैनेजमेंट of that particular company, they have to follow that system। okay, so system of ये क्या है? corporate governance is a system of management। ये proper system है जो कंपनी मैनेज करती है। okay, second will be inclusion। in inclusion we have discussed, first of all I will read that concept in detail। it includes structuring, operation and control of a company to meet collective objectives to benefit all stakeholders, namely shareholder, creditors, employees, customers, suppliers and government। okay, so we include, okay, so in this
point, the elements of corporate governance, we have discussed about the inclusion means it includes the operation of control of management authorities. So whether any company have to focus, ओके, इन इंक्लूजन वी हैव डिस्कस जो कलेक्टिव जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है, इंक्लूजन के अंतर्गत क्या मेंशन रहता है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना जो कंपनी को अपने सिस्टम को, कंपनी को अपनी पोजीशन को कंट्रोल करना है। जैसे कि कंपनी का मेन, कोई भी कंपनी जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करती है कि हाँ हमें ये टारगेट अचीव करना है। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ये किसको फ़ायदेमंद जाते हैं, जो किसको बेनिफिट करते हैं, टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मीन्स शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। स्टेक होल्डर जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स में से बहुत, स्टेक होल्डर एक नहीं रहता, स्टेक होल्डर विविध प्रकार के रहते हैं। जैसे कि कंपनी के अंतर्गत शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, सप्लायर है एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो ये सारी चीज़ों को ये प्रॉपर इंक्लूजन के अंतर्गत क्या रहेंगे, इनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत, कंपनी के जो वर्क है, कंपनी का क्या काम है, किस तरीके की कंपनी है, उनका कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो ये क्या करता है इंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, ये सारी जो ऑपरेशन थिंग्स हैं जो कंपनी के उद्देश्य से फॉलो अप करने गई और जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत समावेश किया है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो भी हैं इस कंपनी के, जो ये क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत समावेश किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो इस कंपनी का, और जो टारगेट्स हैं वो प्रॉपरली इस कंपनी को अचीव करने हैं एज पर देयर टाइमिंग और सिचुएशन। मार्केट में इनकी पोजीशन कैसे एनालाइज करेंगे, ये तो इंक्लूजन के अंतर्गत जो कंपनी की प्रोसीजर है, ऑपरेशन वर्क है, तो ये सिस्टम क्या करता है, इन कंपनी की जो ऑपरेशन ऑफ वर्क है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कंपनी दे हैव टू कंट्रोल। तो वो सिस्टम क्या करता है, इन सारे सिचुएशन को कंट्रोल, ताकि कंपनी इजीली अपना ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है वो अचीव कर सके। तो इन चीज़ों को ये सिस्टम प्रॉपरली कंट्रोल करता है। तो इंक्लूजन के अंतर्गत जिन लोगों ने इन कंपनी में समावेश किया है उनका लोगों के लिए ये सिस्टम विल बी मोर liable on that system, because this system will provide all kinds of operation to control each and every situation of a company and to achieve their collective objective target, and that target will be give a profit to all the stakeholder of that company. Okay, so inclusion we have discussed the points which have to maintain the company should achieve their collective objective, and that objective will benefit to all its their stakeholder members of that company. Okay, so we have discussed 2 points of elements of corporate governance. In next slide we have discussed the third key elements of corporate governance. Third elements of corporate governance will be सेंसिटिविटी। सेंसिटिव, बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव रहती हैं, जैसे कि हम जब कंपनी के रूल्स और कौन कौन से हमें अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन कौन सी सोसाइटीज़ को मैनेज करना रहता है, हमें रेगुलेटरी किसी का बिहेवियर कंपनी के अंतर्गत काम करता है, जिस व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं कंपनी के इस तरीके से, तो इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर पाना, कस्टम्स को मैनेज कर पाना, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली करना, इट्स बिहेवियर हैज सेटिस्फाइड लोकल कम्युनिटी नीड्स एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए, इन चीज़ों को, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स रहते हैं कोई भी कंपनी को, कि हाँ उन्हें कंपनी को कौन कौन से नॉर्म्स, रेगुलेशन, कस्टम, कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है। दे हैव टू प्रोवाइड अ लोकल कम्युनिटी नीड्स फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, कौन कौन से कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कंपनी को अपने पोजीशन मेंटेन करनी है, और जो सेंसिटिविटीज़ एरियाज रहते हैं बहुत सारे के सारे के जो कंपनीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, कंपनी की पोजीशन को इफ़ेक्ट करते हैं,
The behavior satisfy will be local community needs for environmental concern. So that system is maintain that kinds of dignity और प्रॉपर क्या करता है, इन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करता है एंड दे हैव जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द अदर बिहेवियर ऑफ स्टाफिंग कम्युनिटी नीड्स और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की सिचुएशन, जिस सिचुएशन में कौन सा चेंजमेंट करना ज़रूरी है, ये सिस्टम प्रॉपरली उस चीज़ों को कंट्रोल करता है. और इस कंट्रोल से ये जो कंपनीज़ के ओपिनियंस नॉर्म्स वगैरह रेगुलेशंस हैं ये एज पर चेंज हो रहे हैं तो वो उन चीज़ों को स्टेबल करता है. दिस सिस्टम इज़ प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी टू द सेंसिटिविटी पार्ट ऑफ दैट कंपनी. ओके, फोर्थ पॉइंट विल बी मिक्सचर. तो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, दोनों का मिक्सचर प्रोवाइड करता है. अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी एंड डिजराइबल एक्टिविटीज़. जो भी ऑडिटिंग एज पर द सिचुएशन कर रहे हैं हम लोग, मिक्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, कंपनी अपनी खुद की कंपनी की जो अकाउंटिंग करती हैं तो अकाउंटिंग के लिए दे हैव टू अपॉइंट, ऑडिटिंग करते हैं तो दे हैव टू अपॉइंट एन पर्टिकुलर ऑडिटर हु विल बी ऑडिटिंग ऑफ दैट कंपनी एंड दे हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी एंड प्रोवाइड and true and fair opinion on that situation. So this system is provide a mixture of auditing and desirable activities. that के पर्टिकुलर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर को क्या काम करना है, द डिजराइबिलिटी एक्टिविटीज़ विच हैव डन बाय एन ऑडिटर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन. जो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द पावर्स ऑफ ऑडिटर, राइट्स ऑफ ऑडिटर्स. सो ऑल द एक्टिविटीज़ एंड auditable concept will be mixed in this concept system which have managed in the key content of corporate governance. So these are the four elements of corporate governance, which first two elements will be system of management, second inclusion, third sensitivity, fourth mixture. Because in mixture we have assigned the two things in a one way. We have mixed the auditability and desirable activity in a one concept. In this system there two things will be managed as per a one thing. Okay, so these are the four elements of corporate governance. In next session we have discussed the principle of corporate governance. Okay, so in this session we have only discussed the elements of corporate governance. Okay, so in today's session we have discussed in third chapter we have started third chapter of advanced auditing will be corporate audit committee and corporate governance. So आज हमने lecture starting में हमने क्या discuss किया, first introduction, meaning, definition, and we have also completed the fourth will be elements of corporate governance. So we have completed the main sub concept of four concept of corporate governance. This chapter we have completed the four concepts. Okay, in next session or lecture we have moved forward to a next concept of this chapter, next point of this chapter. Okay, so this lecture will be done. So like this lecture, subscribe my YouTube channel. So thanking you to all of you.